once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 3, water resources of your book Geography. In our previous class, we discussed about the disadvantages of the multi-purpose projects, or you can say the disadvantages of the dams. Okay, so now today we will discuss about the rain harvesting system. Rain harvesting, you all are very much aware about it. What is rain harvesting? Okay, when you preserve the rain water, it is known as a rain harvesting system. Okay, so as you all know, like many thought that given the advantages and rising resistance against the multi-purpose river projects, dams can be considered as river harvesting system is considered as a more viable alternative. Okay, because as you all know, there are like so many advantages as well as disadvantages of multi-river project, and economically भी जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जो है काफी एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू द रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम. So if I have to given you the exact definition or meaning of the rain harvesting system, it means collection and storage of rain rather than allowing it to run off. Collection and storage of rain rather than allowing to run off. Okay, that means it means rain harvesting system. So now, as compared to the multi-purpose river project, water harvesting system was a viable and alternative method. Okay, it has seen as a viable and more viable alternative both socio-economically and environmentally. Socio-economically भी और environmentally भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है आपका काफी viable method alternative माना जाता है. So as you all know, in ancient India, hydraulic structures were there. Okay, so with those sophisticated hydraulic structures, there were an extraordinary tradition of water harvesting system too. Like people have in-depth knowledge of water harvesting system. So they developed wide ranges of techniques. What are those techniques? Like people had in-depth knowledge of rainfall regimes. They know they had in-depth knowledge of rainfall regime. They know about the soil types, what type soil types kya hai wahan ki. They techniques to harvest rain water, groundwater, river water and flood water in keeping with the local. ठीक है, डिफरेंट तरीके अलग अलग वेज वो यूज करते थे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स. ठीक है, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस और उनके वाटर नीड्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, वाटर प्रिजर्व करके रखते थे, वाटर हार्वेस्ट करके रखते थे ना. जस्ट लुक एट दीज टू पिक्चर्स गिवन इन योर बुक. जस्ट लुक एट इट. रिचार्ज थ्रू हैंड पंप. ठीक है, जो भी रेन वाटर है कलेक्ट हो रहा है, एक पाइप कनेक्टेड है, उस पाइप से क्या हो रहा है, उस पाइप को हैंड पंप से कनेक्ट कर दिया गया है. नाउ यहाँ पे वाटर कलेक्ट होते जा रहा है और ये जो रेन वाटर है हैंड पंप के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इसको वाटर को कलेक्ट कर रहे हो, वाटर को निकाल रहे हो. ठीक है, नाउ ये हैंड पंप टेक्निक है. नेक्स्ट है रिचार्ज थ्रू अबेंडन डग वेल. ठीक है, डग वेल, वेल की तरह क्या कर रहे हो आप, एक अपने वेल को क्या कर दिया है, डग कर दिया, और वो जितना भी रिवर वाटर है सेम मेथड है. रेन वाटर आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है और वो वाटर डायरेक्टली उस वेल में जा रहा है. ठीक है, और उस वेल से आप whenever you are in need of water, you may take water from that well. Okay, so like just like that, there are so many other ways which ancient Indians or which our ancestors were using for the preserving of rain.
Okay, so for example, if we talk about the hilly areas or mountainous regions, बहुत से डाइवर्जन चैनल्स क्या किया है, नेचुरली डाइवर्जन चैनल्स उन्होंने बना दिए, जैसे गुल्स और पुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। गुल्स और पुल्स, वेस्टर्न हिमालयाज के गुल्स और पुल्स बना रखे हैं। यस, वेस्टर्न एग्रीकल्चर के लिए गुल्स और पुल्स को बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इन राजस्थान रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो आप अभी हमने एक पिक्चर देखी थी, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थ्रू हैंड पंप्स, और हो सकता है डगवेल, अबेंडेंट डगवेल के थ्रू भी क्या है वाटर को हम यूज कर सकते हैं। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। In the flood plains of Bengal, people develop inundation channels to irrigate their fields. Now, what is this inundation channel? Just look at this picture. This is the picture of inundation challenge, just like dams. ठीक है, small dams बोल सकते हो, या फिर ये वाला ये जो channel है, ठीक है, just like this, ये क्या कर लेते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऐसे स्मॉल स्मॉल चैनल्स क्रिएट कर लेते हैं, और वाटर को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जो फ्लड एरिया है उसमें भी काफी बेनिफिशियल होता है, फ्लड को भी रोकने में काफी हेल्पफुल होता है ये इनंडेशन चैनल। In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins and johats. ठीक है, एरिड सेमी एरिड एरिया लाइक राजस्थान का जो एरिया है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको क्या कर दिया, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही आप बोल दीजिए, कि जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उसके पास में उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए जो पानी को क्या है, मॉइस्चर करने में। ऐसी एरियाज, एग्रीकल्चरल फील्ड किसको बोलते हैं, जो पानी को क्या कर सके, स्टैंड कर सके, मॉइस्चर कर सके वो मिट्टी। ठीक है, तो ऐसे एरिया को क्या कर दिया, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है बना दिया है। एंड जैसे खादिम्स हो गया, खादिम्स आपका जैसलमेर, और जैसलमेर में काफी फेमस है। जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, ठीक है, just Johad, just look at this example, this is the example of Johad। ठीक है, ये Johad water harvesting technique है, ये खादिम्स वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। तो विद द हेल्प ऑफ ये जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स है जहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं, वहां पे इस टाइप के मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। And one more thing, in the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water। Maybe आपके घर में भी होगा कि जो अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है, उस टैंक को मे बी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली रूफटॉप रेन वाटर से उसको कनेक्ट करके रखा हो, या हो सकता है जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए टैंक्स को बनाया जाता है। तो और ये बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, हमारा जो यहाँ का आसपास का एरिया है, वहां हमें ये वाली टेक्निक जो है काफी देखने को मिलते हैं। मोस्टली सभी घरों में हम देखते हैं कि इस टाइप के जो टैंक्स है वो बनाई जाती है। अप्रोक्सीमेटली बहुत डीप टैंक्स जो है ये बनाई जाती है। ये जो टैंक है ऑब्वियसली it was a part of the well developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard। Like for example, in my house I have this type of tank, ठीक है, जो directly rooftop rainwater उससे connected है। तो काफी हाउसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे ये टैंक वाला जो सिस्टम है उसको यूज किया जाता है, और रूफ का जो पाइप है उसको डायरेक्टली उस टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो फर्स्ट स्पेल होती है, ठीक है, जो पहली बारिश होती है उस टाइम पे वो पानी जो है कलेक्ट नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो जो पाइप्स वगैरह है उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है वो जो पानी है। ठीक है, बेसिकली फ्रॉम द सेकेंड रेन
जो ये टैंक से डायरेक्टली रूफटॉप को कनेक्ट किया जाता है, जिस पाइप से वो यूज किया जाता है फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ रेन। ठीक है, सो रेन वाटर और पालर पानी एज कॉमनली रेफर टू, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे पालर पानी के नाम से भी काफी फेमस है। पालर पानी भी बोला जाता है। So now just look at the some examples of the rainwater harvesting system. Rooftop rainwater harvesting, rooftop, ठीक है, टेरेस का जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली क्या कर दिया गया है, एक सर्विस वेल या हैंड वाटर या डग वेल से कनेक्ट कर दिया गया है। एंड काफी उसमें जो अब ये भी है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्लीनिंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है, कि जिसमें डस्ट वगैरह जो है वो भी क्लीन होके आ जाए, तो ये प्रोसेस भी टाइम टू टाइम बनते रहते हैं। नेक्स्ट इनंडेशन चैनल, ठीक है, इनंडेशन चैनल जस्ट लाइक द कनाल बोल दो या जस्ट लाइक डैम बोल दो, एक छोटा सा डैम बोल दो, उसकी तरह बनाया जाता है। ठीक है, a kull, just look at this, a kull leads to a circular village tank as the above in the Kaza village, from which water is released as and when required। ठीक है, एक कुल बनाया गया है, ये हिमालयाज में काफी बनते हैं। ठीक है, और जब भी इसको क्या कर दिया गया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और जब भी सर्कुलर टैंक के जैसा होता है, और जब भी पानी की जरूरत होती है तो इस पानी को रिलीज कर दिया जाता है। जो हार्ज एंड खादिम्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Next, there are some interesting facts about the rainwater harvesting. Just look at it. Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, मेघालय। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका, वहाँ की कैपिटल शिलोंग में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग, व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज चिरापुंजी एंड मॉइसनराम, ठीक है, आपने पढ़ा है, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, चिरापुंजी मॉइसनराम तो जो है वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस है मॉइसनराम। चिरापुंजी मॉइसनराम जो शिलोंग के पास में ही है, अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from the rooftop rainwater harvesting. ठीक है, मॉइसनराम, चिरापुंजी जो वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल भी होता है, वहां पे भी क्या है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, शिलोंग में काफी वाटर स्कैसिटी हमें देखने को मिली है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर के बिगिनिंग में ये चीज देखी थी कि वाटर स्कैसिटी का मतलब ये नहीं है कि पानी बहुत सारा पानी है, बट क्या बोलते हैं कि पानी होना जरूरी है, नहीं, प्योर पानी, क्वालिटेटिव वाटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो वाटर सारा वेस्ट हो रहा है, जितना भी रेन वाटर है सीवेज में जाके या फिर ओशन में जाके मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, वो सॉल्टी हो रहा है वो वाटर, तो वो तो हमारे काम का नहीं है ना। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग शिलोंग की 15 to 25% जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल हो रही है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस, Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. Now, Tamil Nadu, ठीक है, it is one first state in India जहाँ पे rooftop rainwater harvesting structure जो है वहाँ के सभी घरों में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई घर बनाते टाइम या फिर उसकी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड या स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए एक लीगल प्रोविजंस भी है जो डिफॉल्टर्स को क्या करती है, पनिश करती है। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ there is another type of irrigation system, ठीक है, or you can say rain water harvesting system. What is this? Bamboo drip irrigation system. In Meghalaya, a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent.
About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the side of the plant. Just look at this figure. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस फिगर. इसमें कैसे बैम्बू के पाइप से क्या कर रखा है, पानी ड्रॉप ड्रॉप गिरते गिरते पाइप से उन्होंने क्या कर रहा है, बैम्बू से क्या कर रखा है, उन्होंने पाइप का स्ट्रक्चर बनाया और उस पाइप से होते हुए क्या जा रहा है, वो पानी अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 लीटर्स ऑफ वाटर जो है इस पाइप से एंटर करता है. पर आप ये बोल सकते हो पर रेनफॉल. ठीक है, हर एक रेन में ये ऐसा 18 टू 20 लीटर्स पानी जो है गिर के बैम्बू ड्रॉप में ड्रॉप ड्रॉप गिर गिर के क्या करता है, 18 टू 20 लीटर्स पानी वो कलेक्ट कर लेता है. पिक्चर 1 देखिए, ये वाला है. बैम्बू पाइप्स आर यूज्ड टू डाइवर्ट perennial springs on the hilly tops to the lower reaches by gravity. ठीक है, अब देखिए जो हायर लेवल पे जो हिली टॉप्स है वहां से लोअर लेवल तक पानी लाने में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन काफी हेल्पफुल है. Just look at the second picture and the third picture. This is the second and this is the third picture. The channel section made of bamboo divert water to the plant side where it is distributed into branches, again made and laid out with different forms of bamboo pipes. The flow of water into the pipes is controlled by manipulating the pipe positions. ठीक है, अब वाटर का जो आप बोल सकते हो सेकंड, आपने सेकंड फिगर देखी. ठीक है, यहाँ से पानी होते हुए जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पाइप की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और वो उस पाइप से जो वाटर का फ्लो है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है. सो क्लास आफ्टर दिस जस्ट लुक एट दिस पिक्चर नंबर 4. ठीक है, देखो हवा में भी क्या बना रखा है, पानी, ये बैम्बू पाइप स्ट्रक्चर बना रखा है. If the pipes pass a road, they are taken high above the land. Obviously, तो अगर काफी हाई लैंड लेगा तो इसको क्या कर रखा है उन्होंने, हवा में ही बना रखा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. Picture number 5 and picture number 6. Reduced channel sections and diversion units are used at the last stage of the water application. The last channel section enables water to be dropped near the roots of the plant. ठीक है, ये आप बोल दीजिए कि ये पूरा पानी क्या कर रहा है, ड्रॉप होते 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 एक टाइप का इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है. ड्रॉप होते होते रूट्स ऑफ द प्लांट्स तक, देखो ऐसे कनेक्ट कर रहा है कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स तक जो है ये पानी जो है यहाँ पे आता रहे. ठीक है, और ये जो प्लांट्स है इरिगेट होते रहे. ठीक है, so class, this is all about this chapter. Thank you so much for joining the class. Thank you. Bye bye. Take